ہم بیک فائر یا بیک ٹو سینڈر کہہ لیں، ہم پریئر کریں. جنوری سے لے کر سپٹمبر کی اس ڈیٹ تک جو کوئی بھی آپ پر اٹیک کیا گیا واپس جائے یسوع کے نام سے. آج کی میٹنگ میں جیسے خدا نے گائیڈ کیا ہے، میسیج میں دوں گا اس پریئر کے بعد، لیکن ہم 7 پریئر پوائنٹس کریں گے اور اس کے بعد آپ کلام کو سنیں گے. ریڈی ہیں سب لوگ؟ اور جب آپ دعا کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی زندگی سے بہت سارے بوجھ واپس جانے والے ہیں. بہت سارے بوجھ آپ کے اپنے نہیں ہیں، دشمنوں نے آپ کی لائف پر بھیجے ہیں، اور جب آپ دعا کریں گے وہ بوجھ واپس جائیں. کتنے ریڈی ہیں؟ جمپ کریں گے اور بولیں گے تھینک یو جیسس. میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے ایکٹیو ہے. جمپ کریں، سمپلی کائنڈلی جمپ کریں، جمپ کریں، لیڈیز اینڈ جمپ کریں، جمپ کریں، بولے تھینک یو جیسس. کیسے آپ جمپ کر رہے ہیں؟ ہر طرح کی بیماری آپ سے جھڑنے والی ہے یسوع کے نام سے. کیسے آپ جمپ کر رہے ہیں؟ ہر طرح کا بوجھ آپ سے جھڑنے والا ہے یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. دونوں ہاتھ ہیں، بولے تھینک یو جیسس. میں ڈکری اور ڈکلیئر کرتا ہوں اس پریئر کو شروع کرنے سے پہلے، اس سال کے اینڈ ہونے سے پہلے آپ کے کان آپ کی گڈ نیوز کو سنے یسوع کے نام سے. اس سال کے اینڈ ہونے سے پہلے آپ کی آنکھیں آپ کے معجزے کو دیکھیں یسوع کے نام سے. میں ڈکری اور ڈکلیئر کرتا ہوں اس سال کے اینڈ ہونے سے پہلے آپ کا منہ خود گواہی دے یسوع کے نام سے. اس سال کے اینڈ ہونے سے پہلے آپ کے ہاتھ آپ کی برکت کو خود ٹچ کرے یسوع کے نام سے. آپ نے سنا نہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اس سال کے اینڈ ہونے سے پہلے آپ کی آنکھیں آپ کے معجزے کو دیکھیں، آپ کی آنکھیں آپ کی پروموشن کو دیکھیں، آپ کی آنکھیں آپ کی برکت کو دیکھیں، آپ کی آنکھیں آپ کی شفا کو دیکھیں، آپ کی آنکھیں آپ کی بحالی کو دیکھیں، آپ کی آنکھیں آپ کی ترقی کو دیکھیں. میں ڈکری اور ڈکلیئر کرتا ہوں اس سال کے اینڈ ہونے سے پہلے آپ کی آنکھیں آپ کے دشمنوں کی ناکامی کو دیکھیں یسوع کے نام سے. میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں اس سال کے اینڈ ہونے سے پہلے جو آپ کی بیڈ نیوز کا ویٹ کر رہے ہیں آپ ان کی بیڈ نیوز سنیں یسوع کے نام سے. جو ویٹ کر رہے ہیں آپ کے گرنے کا، آپ کے برباد ہونے کا، آپ ان کے گرنے کی نیوز سنیں یسوع کے نام سے. میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں اس آلٹر پر کھڑا ہو کر جس آلٹر پر میرے فادر نے قدم رکھا ہے، میں کارپوریٹ انوائنٹنگ کے ساتھ ڈکلیئر کرتا ہوں اس سال کے اینڈ ہونے سے پہلے آپ اپنے معجزے کو ٹچ کریں یسوع کے نام سے. آپ اپنی بلیسنگ کو ٹچ کریں یسوع کے نام سے. میں نہیں جانتا کیا فزیکل بلیسنگ آپ کو چاہیے، آپ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹچ کریں یسوع کے نام سے. میں ڈکری اور ڈکلیئر کرتا ہوں یہاں پر کھڑے ہو کر آپ اپنی زبان سے اپنی گواہی کو بیان کریں یسوع کے نام سے. دونوں ہاتھ ایک کریں گے، بولے تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. میں اپنے ہاتھوں کو آج کی دعا تیرے حضور پہنچے یسوع کے نام سے. آمین. دونوں ہاتھ دور کریں. دونوں ہاتھ دور کیجیے گا. بولے گا آپ یسوع کے نام سے جو کوئی بھی تیر ٹارگٹ کیا گیا ہے میرے ہیڈ کے لیے کہ میری لائف میں مجھ سے مسٹیک ہو، فیلئر ہو، ایرر ہو، یسوع کے نام سے جب میں تالی بجاؤں اور دعا کروں ہر وہ ایرر جو میرے ہیڈ کے لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے، میرے بیوی بچوں کے ہیڈ کے لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے، جب میں تالی بجاؤں اور دعا کروں یسوع کے نام سے بیک فائر ہو، بیک فائر ہو. Targeted my head, every arrow targeted my wife head, every arrow targeted my children's head. I command it will backfire, it will backfire, it will backfire. In the mighty name of Jesus, come on, pray, 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 pray. I see it going to backfire, 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 backfire. Every arrow over the Father children, every arrow over the Father family is backfire. Even कोई स्पिरिट आपके पीछे भेजी गई है ایٹماسفیئر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے،
وہ آپ کے ساتھ پیچھے آئیے. میں سر باندھ دیتا ہوں یسوع کے نام سے. میں یسوع کے نام سے ڈکلیئر کرتا ہوں کوئی بھی مین وومن اگر ہاؤس آف گاڈ میں موجود ہے, کوئی اسپرٹ اسے پرسو کر رہی ہے ایٹماسفیئر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, میں سر باندھ دیتا ہوں یسوع کے نام سے. 18:18 میں لکھا ہے جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر باندھے گا, جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھول دے گا. ہر ایک اسپرٹ کا آپریشن اس ٹیریٹری کے اندر میں سیدھ اور سٹاپ کرتا ہوں یسوع کے نام سے. لاکھ سے کہنے میں سب ہاتھ بلند کیجیے گا. ایرو, occultic arrow, marine arrow, shrine arrow, ایک کروائن arrow میرے بلڈ میں ٹارگٹ کیا گیا ہے, ڈریم کے ذریعے سے میرے باڈی میں ٹارگٹ کیا گیا ہے, فوڈ کے ذریعے سے یسوع کے نام سے. جب میں تعریف جاؤں اور دعا کروں, ہارو ایرو جو میرے بلڈ میں بھیجا گیا ہے, میری باڈی میں بھیجا گیا ہے, فوڈ کے ذریعے سے, ڈریم کے ذریعے سے, ڈریم کے ذریعے سے میری فیملی میں بھیجا گیا ہے, میرے بیوی بچوں میں بھیجا گیا ہے, میرے گھرانے میں بھیجا گیا. جب ہم تعریف جا کر دعا کریں یسوع کے نام سے, وہ سکنس کا ایرو, وہ ڈیزیز کا ایرو, وہ پیرالائز کا ایرو, وہ بلڈ پریشر کا ایرو, شوگر کا ایرو جو بھیجا گیا واپس جائے. Come on, get up and pray. Something is happening. I see something is happening. Something is happening. Every arrow in my system, every arrow in my blood, every arrow in my stomach, through food, through drink, through dream, even in my child, even in my wife, even in my family, I command now, in the mighty name of Jesus, God my Father, Apostle Joseph Magira, our God of his Father, I call in the name of Jesus right now, every arrow from the blood of my family, every arrow in my blood, my family, my child, every arrow in the blood, in the body, in the stomach, through food, through drink, through dream, I command, it will backfire in Jesus' name. Come on, something is happening. Come on, pray, pray, pray. Sickness will out, sugar will out, disease will out, fever will out, temperature will out, cancer will out, liver, brain, kidneys, liver, heart issues, every issue in the body, out, reverse, backfire, 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 God, pray, Kalabashete, Rekeshako, Labra Kalabashete, Magia, Hone, Hele, Sato, come on, pray, pray, something is happening, something is happening, something is happening, something is happening, come on, pray. کتنے لوگوں کو اپنی صحت پیاری ہے, اپنی زندگی پیاری ہے؟ آپ میں سے یہاں جتنے موجود ہیں, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, یہاں آئے ہوئے 70%
बीमार जो है वो जादूगरी की वजह से है। और जादू दूर से नहीं, आपके अपनों ने किया है कि अपने प्यारे लाडले लोग जब आप मुंह चूमते वो लोगों ने, दूर से नहीं है। 70% चर्च के अंदर जो लोग हैं आया हुआ जादू उनके अपने रिश्तेदारों से है, दोस्तों से। समझ आ रही है? तो सीरियस प्रेयर के नमूना देखे, मुझे पता है कितनी आप घर में दुआ करते हैं। सीरियस प्रेयर करते हैं, हालेलुया। जस्ट 2 प्रेयर पॉइंट है, एक आपकी हेल्थ के लिए और एक आपके फाइनेंसेस के लिए। रेडी है? यस। हेल्थ के लिए हम दोबारा दुआ करेंगे, क्योंकि जैसे मीटिंग खत्म होगी लाइन बनाकर आप करें, पास आप दुआ करें, पास आप दुआ करें, अपने लिए एफर्ट इस्तेमाल करें, अपने हाथों को भी जरा तकलीफ दें, अपनी गले को भी जरा इस्तेमाल करें। समझ आ रही है? अपनी बॉडी को प्रैक्टिस करें, खुदा हम देखेगा और आपकी दुआ सुनेगा। हालेलुया। मैंने नहीं अब किसी को कहना कि दुआ करें, क्योंकि आप मैं देख रहा हूँ चेहरे शक्लें जो ऐसे मुंह बना खड़े हैं, जैसे दुआ नहीं कर, ताली भी नहीं बजा रहे, दुकान पे ताला लगा हुआ। समझ आ रही है? मैं भी नहीं दुआ करूँ, मैं तो नहीं किया करूँ, मैं भी ऐसे यीशु के नाम से इतनी दुआ करती हूँ। हालेलुया। दुआ बंद करें, बोलेगा हम आप यीशु के नाम से विचक्राफ्ट किंगडम से जो भी बीमारी का एरो मेरी बॉडी पर, मेरी फैमिली पर, मेरी वाइफ पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरे बच्चों पर किया गया है, जब मैं ताली बजाऊं दुआ करूं यीशु के नाम से बैकफायर हो, बैकफायर हो, बैकफायर हो। जैसे आप दुआ करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, आपके आप में से बहुत सारे लोग कलाम करने से पहले उनकी बॉडी ठीक हो जाएगी। अपना फोकस प्रेयर पर लगाएं, प्रेयर के फायदे को ले। कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग के साथ यहाँ एंजल मौजूद है, लेकिन वो आपकी दुआ सुन रहे हैं। समझ आ रही है? यूहन्ना ने दुआ नहीं की, यीशु का कदम था, यीशु को बपतिस्मा देने वाला था, उसका सर कट गया, पतरस ने दुआ की, फरिश्ते आए उसे खोल कर ले गए। तो आज दुआ का मौका है, दुआ करें। हालेलुया। रिपीट करेंगे, बोले आप यीशु के नाम से जो कोई भी विचक्राफ्ट की किंगडम से, ऑकल्टिक किंगडम से, श्राइन किंगडम से सिकनेस का एरो मेरी बॉडी पर, मेरे बच्चों पर, मेरी वाइफ पर भेजा गया है, वापस जाए, वापस जाए यीशु के नाम से। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, वो एरो अप्रूव हो और बैकफायर हो मिलियन फोल्ड यीशु के नाम से। आप पैसे आप कमाएं और दवाइयों पर लग जाए, पैसे आप कमाएं, घर का मोटर जल गई, पंखा जल गया, मोटरसाइकिल खराब हो गई है, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, घर पर कोई नुकसान हो गया, चाहते हैं आप नुकसानों पर पैसे भरें। ये डीमंस है, ये स्पिरिट्स है। हालेलुया। कर्जे की, सूद की लानत की हुई है, जादू किया हुआ है, कारोबार में बंदिश है, कारोबार बंद है, कस्टमर आते हैं, डील होती है, सारा कुछ होता है, पिछो नहीं होती, पैसे के करीब है, पैसे की झलक देखते हैं, चेक हाथ में आता है, बगैर कैश किए वापस निकल जाता है, डील होती है, सब कुछ एंड द स्पॉट 1% के कैप के साथ सब कुछ वापस हो जाता है। अब चाहते हैं ऐसे हालात से गुजरते हैं? बोले नो, बोले आई रिफ्यूज कर रखा है और मेरे पैसों को लॉक किया है। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, जिस भी ऑल्टर पर मेरे इनकम के खिलाफ जादू किया जा रहा है, वो उस ऑल्टर पर आसमानी बिजली गिरे, रूह कुदस की याद नाज़िल हो। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, गुर्बत का डीमन, सूद का डीमन, कर्ज का डीमन अरेस्ट हो, बैकफायर हो, मेरी इनकम फ्लो हो, मेरी दौलत रिलीज हो,
क्योंकि खुदा तेरे कलाम में लिखा है मसीह गरीब बना ताकि मैं पासे क्रिश्चियन फैमिली अमीर हो जाए। अपना नाम बोले, अपना नाम, आप अपना नाम बोले, आप अपना नाम बोले, बोले मसीह गरीब बना ताकि मैं पासे क्रिश्चियन फैमिली दौलतमंद हो जाए। यीशु के नाम से जो कोई भी ईमान इस आयत के खिलाफ खड़ा है और मेरी लाइफ में सफरिंग का बाइस है, जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, हेवन उसे स्ट्राइक करे, ब्लड लाइन कर्स ब्रेक हो, विचक्राफ्ट कर्स ब्रेक हो, श्राइन कर्स ब्रेक हो, evil altar break ho. Come on, clap your hands and pray. Clap your hands and pray. आपके लिए फाइट कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोगों की लाइफ पर उन्होंने प्रीमेच्योर डेथ का टारगेट किया है, प्रीमेच्योर डेथ का वक्त से पहले मरने का। हालेलुया। और इवल प्लान बनाया। दोनों हाथ बुलंद करेंगे और आखिरी मेरे पॉइंट को क्लोज करेंगे। बोले अब आप यीशु के नाम से जो भी इवल प्लान, इवल एजेंडा, इवल एडवाइजर मेरे अगेंस्ट खड़ा है, इवल प्लानिंग कर रहा है, उसका इवल प्लान फेल हो। जो गड़ा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए खोल रहा है, उस गड़े में आप गिरे। जो वो जाल मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बिछा रहा है, उस जाल में आप फंसे। जो कोई भी इवल एडवाइजर है, मैं जो यीशु के नाम से कमाल क्लब के हैंडल से जिंदगी में करोड़पति बनना चाहते हैं, आपको नहीं पता आपके रिश्तेदार आपको करोड़पति बना देंगे, आपके दोस्त ज्यादा से अंदर से रिश्तेदार मिलने वाले स्माइल बनना चाहेंगे। आज जो आप मैसेज सुन रहे हैं ये मुद्दा का आपको पता चलेगा आपकी लाइफ का ये मुद्दा कौन है। आमीन। सिट डाउन एंड नेवर गो डाउन। मैंने मैसेज सुनाया आपको
यहोवा खुदा के अगेंस्ट आवाज उठाई और 1/3 एंजल को लेकर जमीन पर निकल आया। और इसी तरह हमने दूसरी स्पिरिट देखी, स्पिरिट ऑफ जहाजी, उर्दू में जहाजी, ऐसा शागिर्द जिस पर 3 गुना मसा होना चाहिए था, उसने उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया और उसने लानत कोड रिसीव किया। वो सिर्फ मैन ऑफ गॉड के साथ पैसे के लिए था। उसके बाद हमने लास्ट संडे मैसेज देखा, स्पिरिट ऑफ केन के पहले खानदान में, पहले घराने में, पहले ही फैमिली के अंदर भाई भाई से जेलस है और भाई ने भाई का खून कर दिया। जेलसी बड़ी डेंजरस स्पिरिट है, जिसको पकड़ लेती है उसे कंज्यूम कर लेती है और वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि वो आप पर कामयाब होने ना पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आज उसी सीरीज का चौथा मैसेज है। पहले स्पिरिट ऑफ अबिस्लूम, स्पिरिट ऑफ जहाजी, स्पिरिट ऑफ केन, और आज हम स्पिरिट ऑफ जूडास देखेंगे, यहूदा अस्करियोती की रूह। ये आज यहूदा अस्करियोती तो नहीं है, पर उसकी स्पिरिट मूव कर रही है और ये स्पिरिट चर्च के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। चर्च इज फुल ऑफ जूडास। यीशु ने 12 शागिर्द चुने, 12 में एक यहूदा है। चर्च के हर 12 मेंबरों में एक यहूदा है। अगर चर्च में 50 मेंबर हैं, समझे 2 यहूदा बैठे हुए हैं चर्च के अंदर। चर्च के अंदर अगर रुकने कर दे, 12 का पहाड़ा पढ़ते जाए, 12 24, 36 लोगों में 3 यहूदा बैठे हुए हैं, 48 लोगों में 4 यहूदा बैठे हुए हैं। इस तरह 100 के अंदर बहुत सारे यहूदा है। जिस तरह बढ़ते जाएंगे, जितना बड़ा क्राउड है उतने ज्यादा यहूदा है। और यहूदा आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर है। अगर आपको समझ नहीं आई यहूदा के ऊपर, आपकी जिंदगी फेल और फ्लॉप हो सकती है। आमीन। यहूदा सिर्फ चर्च में नहीं है, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके दोस्तों में हो सकता है, आपके खानदान में हो सकता है। जब मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊंगा, आपको समझ आएगी, आप यहूदा को मार्क कर लेंगे। हालेलुया। आए हम देखेंगे पहला हवाला मत्ती 26 बाब 14 से 16। मत्ती 26 बाब 14 से 16, स्पिरिट ऑफ जूडास पार्ट 4। और स्वर्ग उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपये तोल कर दे दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। आमीन। आमीन। यहूदा खुदा ताला के बेटे यीशु के साथ है, हाईएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। खुदा जिस्म लेकर दुनिया में आ गया, हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड ऑफ दैट टाइम, अपने दौर का सबसे पावरफुल मैन, जो पानियों पर चलता है, मुर्दे जिंदा करता है, गूंगों को जुबान देता है, पैरों को कान देता है, पानियों पर चल रहा है और रोटी मल्टीप्लाई कर देता है। इतने पावरफुल शख्स के साथ उसकी शागिर्दी के अंदर है। लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है, he went to the night to meet the high priest, हाईएस्ट मैन ऑफ गॉड के साथ होकर, वो एक हाई प्रीस्ट, हैकल का वो काहिन जिसने कभी मुर्गी जिंदा नहीं की, उसको मिलने जा रहा है। समझ आ रही है? यीशु की मीटिंग छोड़कर, यीशु की टीचिंग छोड़कर, यीशु की बाइबल क्लास छोड़कर, यीशु का चर्च छोड़कर वो हाई प्रीस्ट को मिलने जा रहा है। जो भी मेंबर बहाने बनाए ज्यादा, जो भी वर्कर ऑफिस में ज्यादा बहाने बनाए, मैं फला वजह से एब्सेंट था, फला वजह से एब्सेंट था, जो मोस्टली एब्सेंट रहते हैं वो सस्पेक्ट है, वो सस्पेक्ट है, क्योंकि वो आपको जाकर कहीं डिस्कस कर रहे हैं कहीं जाकर आपकी अपोजिशन के पास। फिर चले माना मिलना कोई बुरी बात नहीं। उसको पता है कि फक्की और फरीसी, फैरसीज एंड सदूसीज, फैरसी और सदूसी, फक्की और फरीसी मेरे स्पिरिचुअल फादर के दुश्मन। पता था उनको, यहूदा को पता है फक्की फरीसी यीशु को मारना चाहते,
फक्की फरीसी यीशु के मुखालिफ है, फक्की फरीसी यीशु की मिनिस्ट्री को, यीशु के चर्च को, यीशु के विजन को, यीशु के प्लान को पढ़ने से रोकना चाहते हैं। उसके बावजूद वो जाकर उनके साथ बैठ रहा है। ऐसे दोस्तों से किनारा करें, ऐसे रिश्तेदारों से किनारा करें जो आपके मुखालिफों के साथ जाकर बैठते हैं, बिकॉज़ उनके अंदर यहूदा की स्पिरिट है। वो आपको डिस्कस करते हैं, वो आपकी बुराइयां करते हैं, आपकी चुगलियां करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, आपके आइडियाज लीक करते हैं। उनसे मिले, लेकिन जब वो आए अपने मुंह पर ताला रखे। यहूदी है वो, यहूदा इस्करियोती की रूह है। क्या मतलब था उसको यहूदा को? यीशु को पता है कि ये यीशु के दुश्मन है, पता है यीशु की मिनिस्ट्री के अगेंस्ट है, पता है यीशु की जान के दुश्मन है, फिर जाकर उनकी रोटी खा रहे हैं, फिर जाकर उनका पानी पी रहे हैं। यहूदा इस्करियोती है। पहला साइन जो एब्सेंट रहता है चर्च के अंदर, संडे स्कूल के अंदर, अपनी सेल के अंदर, किसी भी टीचिंग के अंदर, चर्च सर्विस में, प्रोग्राम में जो बंदा हैबिचुअल एब्सेंट है, लेट है, वो यहूदा की स्पिरिट में मूव करता है। नंबर 2, जो आप ऐसे रिश्तेदार आपके बहुत सारे होंगे जिनसे आपकी लड़ाई है, वो उनसे भी मिल रहे हैं, आपसे भी मिल रहे हैं, वो कहते हैं हमारी लड़ाई नहीं है, हम दोनों से मिल रहे हैं, हम न्यूट्रल हैं, डेंजरस है वो आपको बेच देंगे। यहूदा भी इसी तरह था। यहूदा ने कहा कोई बात नहीं, मैं यहूदी हूं, कर ले। मेरे कहते लीडर आप, यीशु तो आज पैदा हो रहा है, यीशु तो आज पादरी बन रहा है, यीशु तो आज इवेंजलिस्ट बन रहा है, यीशु तो आज में जीत रहा है, मेरे दोनों के मैं न्यूट्रल हूं। वही लोग आपको बेच देते हैं, वही लोग। समझ आ रही है आपको? ये तो समझ आ रही है? जोर बताएंगे प्रेज का हालेलुया। और फिर उनकी कमजोरी क्या है? खाना, लालची, बोतल पिला दी, खाना खिला दिया। फकीर फरीसियों को जब वो मिलने गया तो उन्हें अच्छी रोटी खिला दी, 2-4 बुराइयां और की यीशु की, 2-4 बातें और यीशु की, अच्छा खाना खिला दिया। ओ बाजी बाजी बाजी, ये कमजोरी है। यीशु को यहूदा ने 30 सिक्कों में बेचा है। आप पेप्सी, कोको कोला के पीछे, एक पिज़्ज़े के पीछे अपने पास्टर को बेच रहे हैं, अपनी फैमिली को बेच रहे हैं, अपने खानदान को बेच रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, स्पिरिट ऑफ यहूदा है। मैं डिक्लेयर करता हूं, कोई भी यहूदा का फेल एफाता पर असर करने लगा यीशु के नाम से। यहूदा फेल और फ्लॉप हो यीशु के नाम से, यहूदा फेल और फ्लॉप हो यीशु के नाम से। फिर यीशु को डर नहीं है अबिसलूम स्पिरिट से, यीशु को डर नहीं है काइन स्पिरिट से, यीशु को डर नहीं है साउथ स्पिरिट से, यीशु को डर नहीं है अतिया स्पिरिट से, यीशु को डर नहीं है इजाबेल स्पिरिट से, इवन यीशु को डर नहीं है विचक्राफ्ट स्पिरिट से। यहूदा सबसे डेंजरस है, क्योंकि यहूदा अकेला अनॉइंटेड सन ऑफ लिविंग गॉड, जिंदा खुदा के बेटे को जान से मरवाने का मंसूबा बना। बाकी देख ले, किसी ने यीशु पर हाथ डालने की कोशिश नहीं। यहूदा वो होता है। नंबर एक पॉइंट है जो एब्सेंट है। नंबर 2, जो आपके दुश्मनों से मिलते हैं, अगर आपके करीब है, माय गॉड, उनसे जो मिलते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन लीक करेंगे और आपको वहां मरवाएंगे जहां आपकी सोच है। समझ आ गया? और दूसरे फकीर फरीसी, उनको बड़ा टैलेंट है, चंद सिक्के देकर, रोटी देकर, कोल्ड ड्रिंक देकर, पिज्जा देकर, बर्गर देकर अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने का, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। समझ आ रही है? तो कलाम इफाता मिनिस्ट्री में मैं आपको प्रोफेटिक टीचिंग दे रहा हूं। प्रोफेटिक टीचिंग आपको रिहा करेगी यीशु के नाम से। कलाम में लिखा सच्चाई को जान, सच्चाई मुझे रिहा करेगी यीशु के नाम से। राइट हैंड बुलंद कीजिएगा, मैं डिक्लेयर करता हूं, कोई भी यहूदा स्पिरिट आपको अरेस्ट कर लेना पाएगा यीशु के नाम से। कोई भी यहूदा स्पिरिट इफाता और इफाता फैमिली के खिलाफ खड़ी हो लेना पाएगा यीशु के नाम से। जो जैसे यीशु ने कष्ट किया, लानत उस शख्स पर, उसका मनसब कोई और ले ले, उसके गले में चक्की का पाट हो और वो समंदर की गहराई में डूब मरे। मैं डिक्लेयर करता हूं, जो कोई भी इफाता के खिलाफ एज ए यहूदा ऑपरेट हो, उसकी अदालत हो यीशु के नाम से, उसकी अदालत हो यीशु के नाम से। जोरदार जगह पे हालेलुया। फिर ये नहीं, जब वो फकीरों फरीसियों से मिल रहा है, उसके बाद वो लिखा उसकी तार में था कि कब उसे पकड़वाए। यहूदा की जिंदगी का सबसे मेन पॉइंट प्रेयर है। यीशु ने जब चुना, 40 दिन 40 रात रोजा रखा, दुआ के बाद शागिर्दों का चुनाव किया। यहूदा उसके अंदर
बोले प्रेयर में, आवाज नहीं आ रही, प्रेयर में। ये मत सोचे कि ये बंदा तो बस अब ये बंदा तो आपकी प्रेयर मीटिंग में था, बड़ी प्रेयर करता था, ये यहूदा नहीं हो सकता, वही यहूदा हो सकता है। यीशु ने रोजा रख के जब 12 शागिर्दों का चुनाव किया, उसमें यहूदा था। इस स्पिरिट को दुआ से फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको समझ ना हो कि कौन सी दुआ करनी है। इसके लिए बड़ी डेंजरस प्रेयर एंड पर हम करेंगे, समझ आ गया? हालेलुया। इवन यीशु ने चुनाव किया यहूदा वहां, उसके बाद यहूदा यीशु बागे गतसमनी के अंदर है, दुआ कर रहा है, यहूदा वहां उसको पकड़वाने आया। कौन सा मोमेंट है? बोले दुआ। चुनाव के वक्त दुआ है, वो यीशु के चुनाव में आ गया। यीशु को पकड़वाते वक्त यीशु दुआ कर रहा है, यहूदा आ गया। इवन यहूदा जब मर भी गया है, जब 2 लोगों का चुनाव हो रहा है यहूदा की सीट देने के लिए, यहूदा की कुर्सी का के लिए वोटिंग हो रही है रसूलों के अंदर, तब भी रसूलों ने दुआ करके कुरानंदाजी की है, तो दुआ करके कुरानंदाजी की है, तो मत्ताया के नाम कुरान निकल आया है। लेकिन इतनी गंदी स्पिरिट है ये, मत्ताया अपनी खिदमत पूरी ना कर सका, तो आसमान से यीशु को बाय फोर्स पौल को भेजना पड़ा है। जोरदार ताली देकर प्रेज़ का हालेलुया। उसने अपनी पोजीशन पर किसी को काम नहीं करने दिया, जो पोजीशन वो चर्च में छोड़ कर गया बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। मत्ताया का कुरान निकला दुआ के बाद, मत्ताया अपनी खिदमत नहीं कर सका। बाइबल में सिंगल आयत नहीं है कि मत्ताया ने कोई जीरो काम किया जो उसकी कुर्सी पर बैठा। तो खुदावंद ने आसमान से लिखा कि 12 मैंने शागिर्द ने कुर्सी खाली है, एक ने चीट किया, उसे आसमान से खुद उतर के पालूस का दमिश्क की राह पर चुनाव करना पड़ा है ताकि 12वें रसूल की कमी को पूरा करे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो यीशु दुआ कर रहा है, चुनाव कर रहा है, तब यहूदा मौजूद है। यीशु दुआ कर रहा है ज़ैतून के पहाड़ पर, बागे गतसमनी के अंदर, वहां यहूदा पकड़वाने आ गया। यीशु आसमान पर चला गया, यहूदा ने फांसी ले लिया, उल्टी गिरा, पेट फट गया और अभी मर गया, उसकी स्पिरिट घूम रही है। मत्ताया को उसने काम नहीं करने दिया। शागिर्दों ने दुआ की है, दुआ के बाद पूरा निकाला, मत्ताया के नाम निकला, यहूदा फिर उसको काम नहीं करने दिया। मैं डिक्लेयर करता हूं, जो कोई स्पिरिट आपके काम को डिस्टर्ब करे, अरेस्ट हो यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं, एंजल जुरिल उसे स्लॉटर करे यीशु के नाम से। बाय फोर्स बाय फायर मैं डिक्लेयर करता हूं, कोई आपकी पोजीशन लेने ना पाए यीशु के नाम से, कोई आपकी पोजीशन को डिस्टर्ब करने ना पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। कैन आई गो हायर? कैन आई गो हायर? स्पिरिट ऑफ यहूदा बड़ी डेंजरस है। यहूदा की स्पिरिट एक ऐसा कैरेक्टर है जो परफेक्ट है। अगर चर्च में बैठकर यीशु काउंसलिंग करता या पंचायत करता लीडरों के साथ बैठकर कि क्या सजा होनी चाहिए, तो सारे लीडर उसके साथ खड़े होते यहूदा के साथ, कहते नहीं परफेक्ट है ये। यहूदा 3.5 साल यीशु के साथ रहा, उसने सिंगल मिस्टेक स्पिरिट को परखना। आपकी स्पिरिचुअल आंखें चाहिए, ईगल आइज, हार्ट देखने वाली, काम देखने वाली नहीं। ये मुंह पर मीठे होंगे, ये मुंह पर परफेक्ट होंगे, अंदर से ये जहर होंगे। यहूदा एक दिन भी उसने यीशु के साथ बदतमीजी नहीं, एक दिन भी यीशु के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, सीक्रेटली अंदर प्लानिंग कर। समझ आ रही है? यीशु एक दफा पतरस को कह रहा है, पतरस शागिर्दों को कह रहा है चला जाऊंगा, और तीसरा हैकल बनी है, ये खाई जाएगी और 3 दिन में खड़ी कर दूंगा मैं, तो ये मुझे मेरी जिस्म को दारी करती है। वो यहूदा का कह रहा है, यहूदा चुप है, और पतरस कह रहा है यीशु को मैं छोड़ के मत जा। तो खुदा भी यीशु से कहना था पतरस ऐ शैतान दूर। हालेलुया। पतरस बोल रहा है हर जगह पर, लेकिन हर जगह बड़ी हिकमत इस्तेमाल कर रहा है यहूदा। हालेलुया। यहूदा का कैरेक्टर परफेक्ट कैरेक्टर है। अब इसको ऊपर से जज नहीं कर सकते। 2 चीजें हैं, फिजिकल कैरेक्टर और हार्ट। लेकिन जब आप जिस्मानी है, आप उसका काम देखेंगे, वो जी वक्त पर मीटिंग लीड कर रहा है, वक्त पर मैसेज दे रहा है, वक्त पर सफाई कर रहा है, वक्त पर ये है, पास साहब आपकी बाइबल उठाई हुई है, बड़ा
टी शर्ट तैयार हुआ है, आप कहेंगे नहीं ये बंदा नहीं, नो 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 बस आप गलत है, आपकी परख गलत है। इवन यीशु अगर उसको कहता है ये यहूदा गलत है तो यीशु को भी झूठा कर देते हैं। समझ आ रही है आपको? यहूदा अपने कामों में परफेक्ट है, लेकिन उसको अगर अंदर से देखें उसका दिल शैतान है। हालेलुया। इसलिए लिखा है शैतान यहूदा में घुस गया। मैं अभी आयत में दिखाता हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शैतान किसमें घुस गया? किसमें? यही वो इतना शरीर है दिल का। इवन डिमोनोलॉजी के अगेंस्ट एक एक्ट हुआ है। डिमोनोलॉजी के अंदर हम ये सिखाते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर इवन स्पिरिट एंटर हो सकती है, उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। डीमन उसकी बॉडी में एंटर हो सकता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन एंजल किसी की बॉडी में एंटर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ यहूदा उसने अपने बदरूओं को कहा नो 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 तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। स्पिरिट्स को कहा, डीमन को कहा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यहूदा के जिस्म में मैं भूल जाऊँ। समझ आ गया? यदि उसने इतना वो क्वालिफाइड है इवन शैतान के लिए, उसके जिस्म के अंदर शैतान एंटर हो रहा है यीशु को मारने के लिए, यीशु को स्लॉटर करने के लिए, और यीशु की असाइनमेंट को 3.5 साल में खत्म कर रहा है। आप और मैं जीसस नहीं, बोले मैं जीसस नहीं। आपको चाहिए यहूदा? मुझे नहीं चाहिए। आपको चाहिए यहूदा? आप बोले आपको चाहिए यहूदा चाहिए अपनी जिंदगी है? आपको खत्म कर दे 3 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर है? जिनको यहूदा चाहिए हाथ खड़ा करें, जिनको यहूदा चाहिए। जिनको नहीं चाहिए वो हाथ खड़ा करें, बोले मुझे यहूदा नहीं चाहिए। हालेलुया। यीशु को उसने 3.5 साल खिदमत एंजॉय करने के लिए, हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर को 35 साल खिदमत में हो गए, मुझे 10 साल हो गए। समझ आ गया? उन्होंने यीशु को खुदा ताला के बेटे को 4था साल पूरा करने के लिए उसने इसको एंड कर दिया। हालेलुया। आप और मैं जीसस नहीं, तो जीसस के लिए तो खुदा है, आपके लिए मेरे लिए नहीं है। हाथ राइट हैंड बोल कीजिएगा, मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ जो कोई यहूदा आपकी अपनी जिंदगी में बिफोर टाइम एक्सपायर हो यीशु के नाम से, प्रीमेच्योर डेथ हो यीशु के नाम से, एक्सीडेंट हो यीशु के नाम से, ब्लाइंड हो यीशु के नाम से, फालत हो यीशु के नाम से, जो कोई यहूदा मेरी लाइफ में है एक्सपायर हो यीशु के नाम से, मेरी मिनिस्ट्री में एक्सपायर हो यीशु के नाम से, जो मुझे एक्सपायर करना चाहता है खुद एक्सपायर हो यीशु के नाम से। 2 तारीख में प्रेज का हालेलुया। नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे, नेक्स्ट आयत। जुड़ा और फकी मौका ढूंढ रहे थे, आगे कि उसे किस तरह मार डाले, क्योंकि लोगों से डरते थे, और लोगों से डरते थे, क्राउड से। क्राउड की वजह से यीशु पर उन्होंने हाथ नहीं डाला, क्राउड की वजह से कि नहीं इसके साथ लोग हैं, और वो मौका ढूंढते थे। आगे और शैतान यहूदा में समाया। कौन समाया? क्लियर लिखा हुआ लूका तबीब, लूका हकीम में, लूका राइटर है, इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा PhD डॉक्टर है उस टाइम का, और वो लिख रहा है कि शैतान यहूदा में समा गया। शैतान यहूदा में समा गया, डीमन नहीं, इविल स्पिरिट नहीं। उसने रोक दिया, उसने कहा नो, आसमान पर तो मैं इसके साथ लड़ नहीं सका, वहाँ मीकाएल ने मुझे मार के भगाया है, अब जमीन पर एक जिस्म लेकर आया है, यहाँ मुझे मौका दे दो बदला लेने का। उसने कहा ना, कोई डीमन एंटर नहीं होगा, कोई स्पिरिट यहूदा के जिस्म में मैं खुद एंटर होगा। प्रोटोकॉल ब्रेक है हेवन का। एक और एंजल ने, लूसीफर ने, बॉडी के अंदर अलाउ नहीं है, आसमान के नियम और कानून के मुताबिक बॉडी के अंदर अलाउ है, ईच क्रिश्चियन की बॉडी में इवन स्पिरिट और बदरू डीमंस एंटर हो सकते हैं, एंजल नहीं। ये आसमान का नियम है। फरिश्तों को एक किताब दी गई है, कानून, कि ये जैसे ट्रैफिक सिग्नल हमें दिया गया है कि आपने लाल बत्ती पर जो है ना क्या करना है, स्टॉप हो जाना है, ग्रीन बत्ती पर चलना है, येलो पर गाड़ी को किक मार लेनी है या स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, रेडी हो जाना, रेडी टू मूव। लेकिन वहाँ किताब में उनको दिया गया है स्पिरिचुअल रैम के अंदर कि तुमने किसी जिस्म में एंटर करना। उसने वो नियम ब्रेक किया, उसने कहा नो, आसमान पर मुझे मीकाएल ने मारा है,
مجھے نکال دیا 1/3 عزت کے ساتھ. اب یہ زمین پر اس کا بیٹا جسم لے کر آیا ہے. مجھے موقع دو خود میں اس کے اندر گھس جاؤں. لکھا ہے شیطان یہودا میں سما گیا. اپنے سر پر ہاتھ رکھے بولے یسوع کے نام سے میری باڈی نو انٹری ہے, نو زون انٹری ہے. میں سر کے بالوں سے پاؤں کے تلواتا ہوں, یسوع کے لہو میں خود کو ڈپ کرتا ہوں, روح القدس کی آگ میں ڈپ کرتا ہوں. کوئی بھی یہودا کی اسپرٹ میری باڈی میں انٹر ہو نہ پائے. میں ڈس الاؤ کرتا ہوں ہر ایک ڈیمن کو, ایول اسپرٹ کو, شیطان کو یسوع کے نام سے. آمین. زور سے کریں میرے ساتھ. جو اکثر یوفی کہلاتا اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا, اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ ان کو اس طرح ان کے حوالے کر دے. وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا. اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالہ کر دے. آمین. آپ کا کوئی ایسا قریبی دوست رشتہ دار جو کھانے پینے کا اور پیسے کا لالچ کیا اور اس کا دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی ہے جگانے والے, وہ آپ کو بیچ سکتا ہے, وہ آپ کو مروا سکتا ہے ایسے طرح کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویا. آواز نہیں ہے اپنی, بولیں ہاللیلویا. یہاں اس کی سب سے بڑی کریکٹرسٹک کیا ہے؟ وہ گپ شپ پسند کرتا ہے, گپی ہے, چگلیاں, برائیاں سننا سنانا. ہے مرد لیکن حرکتیں جنانیوں والی. چرچ چھوڑ کر, میٹنگ چھوڑ کر, ٹیچنگ چھوڑ کر, کنونشنیں چھوڑ کر گپیں اور چگلیاں لگانے جا رہا ہے فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کتوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہودا سب سے پہلا اس کا کریکٹر کیا ہے؟ گپ شپ کرنا. اس کے پیٹ میں بات نہیں رہتی. جیسے ہی وہ بات اس کو پتہ لگتی ہے گڑگڑ شروع ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ڈھونڈو کس کے ساتھ بیٹھ کرنا ہے, چگلیاں کرو, برائیاں کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا پیسوں کا لالچی. پیسوں کا لالچی. یسوع نے اسے خزانچی بتایا. اس نے اکاؤنٹنٹ ڈگری کی ہوئی ہے, اکاؤنٹ مینج کرتا ہے اور چندہ چوری کرتا ہے, پیسہ چوری کرتا ہے. لالچی ہے, اس کی ساری زندگی پیسے کے گرد ہے. پیسہ. آج جو شخص چرچ میں پیسہ دیتے ہوئے اس کی جان نکل جائے, اسپرچل وہ سمجھے پتہ نہیں یہ کاروبار ہے یا ڈائریکشن بھی جا رہی ہے, پتہ نہیں بزنس ہو رہا ہے. نہ وہ پتہ نہیں یہ اسپرچل ٹرانزیکشن ہے. اسپرچل ٹرانزیکشن ہے. میرا میسیج سنے جا کر پورے 3 گھنٹے کا پاور آف سیکریفائس, مسٹر سیکریفائس آپ کو سمجھ آئے گی کہ آفرنگ کتنی پاورفل ہے. یہ جو دعائیں آپ بڑھ کر رہے ہیں, جب تک اس میں آپ کا سیکریفائس ایڈ نہیں ہے وہ بیکار ہے. تو نمبر 1 وہ گپ شپ کا آتی ہے. نمبر 2 وہ پیسے کا لالچی ہے. پیسے کا لالچ. ایک حوالہ پڑھیں گے, بڑا پاورفل ہے. آگے چلیں گے. کتنے لوگ برکت پا رہے ہیں؟ ہاللیلویا. یوحنا 12:2-5. یوحنا 12:2-5. وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مارتھا خدمت کرتی تھی, مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے. پھر مریم نے جٹاماسی کا ارد سے خالص اور بیشے قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا. مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا. یوحنا بھی اس کو نوٹس کر رہا ہے. یوحنا اپنی بائبل میں لاتا اس کا کریکٹر بتا رہا ہے. اس نے نوٹس کیا کہ یسوع کے اگینسٹ کون سا شاگرد بولا ہے. ادھر لوکا نوٹس کر رہا ہے کہ اس کے باڈی میں شیطان گھسا ہے. ادھر یوحنا نوٹس کر رہا ہے اپنی انجیل کے اندر. یہودا کیا بولا, پڑھیے گا. یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟
उसने ये इसलिए ना के कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था। क्या था? यूहन्ना उसको कह रहा है क्या था? वो चोर था। आगे क्या लिखा? और चूंकि उसके पास उनकी थैली रखी थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना को पता था, यीशु को भी पता था, लेकिन यीशु ने उसे एक दिन ही डांटा। उसको पता था ये चोर है, और उसके अलावा किसको और राज पता था? यूहन्ना को। वो अपनी अंजीर में लिखा है, क्योंकि वो चोर था, थैली में जो पड़ता था वो निकाल लेता था। हालेलुया। मेरा भी इस टॉपिक पर नहीं है, मेरा इस टॉपिक पर मैं फोकस करूंगा कि वो कह रहा है कि ये अत्तर बेचकर किसको दे दो? गरीबों को। यहाँ चर्च में लोग बैठे होंगे, जब आप टाइप देने लगेंगे वो छोड़ो, पास्टरों का पेट बड़ा है, पास्टरों को बाहर से डॉलर आते हैं, पास्टरों को ना दे, ना 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 ना, ये गरीबों को खुद ही बांट दे अपने हाथ से, आपको स्वाब मिलेगा। खराब दे दे, कपड़े ले दे, बेवाओं को दे दे, यतीमों को दे दे। मैं आपको बता दूं यहाँ से ये स्टोरी है। यीशु प्रीच कर रहा है मैसेज कि मुझे दो, और शागिर्द मैसेज दे रहे हैं गरीबों को दो। किसका मैसेज ज्यादा पावरफुल है? सुनने में शागिर्दों का, वो अपने मास्टर की मुखालफत कर रहे हैं, यीशु की। गरीबों को देना वाजिब है जब आपने डायर की, चर्च की दी हो। यतीमों को देना वाजिब है जब आपने चर्च की डायर की दी हो। खुदा पहले है। कुछ लोग खुद में बॉस बनते हैं बगैर बाइबल को समझे हुए। यहाँ अगर अब यहाँ वो देखें, यीशु को एंटी कर रहा है पब्लिकली, और अपने आप को अच्छा साबित कर रहा है कि मुझे गरीबों की फिक्र है। मुझे जरा बताएं कि यीशु को गरीबों की फिक्र ज्यादा है या यहूदा? इवन जब यीशु के बारे में यशाया प्रोफेसी कर रहा है 600-700 साल पहले, यीशु भी पैदा नहीं हुआ मरियम से। यशाया 61 में वो क्या कह रहा है कि खुदा की रूह मुझ पर है, खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया, उसने मुझे मसा किया है, ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे भेजा है, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई, कैदियों के लिए रिहाई दूं, असीरों के लिए आजादी का ऐलान और करूं, असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदा के सारे मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दो, और सब गमगीनों को दिलासा दो। यहाँ यीशु मसीह गरीबों के लिए कह रहा मैं आया। हालेलुया। यशाया प्रोफेसी कर रहा है कि उसका आना ही, जो लोग मजलूम हैं, जुल्म के अंदर हैं, पिसे हुए हैं, कुचले हैं, उनके लिए आया। यशाया 700 साल पहले प्रोफेसी कर रहा है। यहाँ यूहन्ना 12 में उसका चुना हुआ शागिर्द उसे गलत साबित कर रहा है कि ये तू अतर अपने पैरों में लगवा रहा है, ये बेच के गरीबों को दे दे। और नीचे यूहन्ना एक्सप्लेन कर रहा है वो किस लिए कह रहा था, क्योंकि वो थैली से पैसे निकाल रहा। उसको पता था कि जब ये वो उसको अमाउंट तक पता है, इट मीन्स कि वो उस लेवल का परफ्यूम इस्तेमाल करता था। क्या कितनी अमाउंट बताइए उधर? 300 दिनार। ये समझे परफ्यूम है। वो लेडी लेकर आई यीशु के पैरों में डालने के लिए। वो क्या कह रहा है? वो परफ्यूम देखते, ब्रांड देखकर वो अमाउंट बता रहा है, ये 300 दिनार का। हाउ यू नो? मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं वहां होगा और मेरा कुछ शागिर्द कहता सर ये बेच कर गरीबों को दे दे, मैं कहता तुम्हें कैसे प्राइस पता है? हाउ यू नो? 300 दिनार के परफ्यूम देखते, लेबल देखते तुम्हें प्राइस बता दिया। हाउ यू नो? इसका मतलब है कि यहूदा जो गले से पैसे चोरी करता था, वो महंगे महंगे ब्रांड के परफ्यूम इस्तेमाल करता। कितनी अमाउंट कितनी है, प्राइस कितनी है, और उसको पता था जब ये पैसे थैली में आएंगे मैं निकाल लूंगा। और यूहन्ना को पता था, वो यूहन्ना 12 में एक्सप्लेन कर रहा है। हालेलुया। और दूसरे लफ्जों में पब्लिकली वो डबल ट्रिक कर रहा है। उसकी जुमले में डबल ट्रिक है। नंबर 1, वो पब्लिकली शो कर रहा है मुझे यीशु से ज्यादा हमदर्दी है गरीबों। हालेलुया। आज के लोग वीडियो वायरल कर देते हैं नेट पर आकर, ओ जी पास्टर चंदा खा गए, ये हो गया, अपना हो गया, अपना हो गया, आप इनको ना दें, ये दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। और सबसे बड़ा डाकू वो होगा। समझ आ रहा है? मैं यतीम खाना बनाया है, मैंने बेवा हाउस बनाया, ओल्ड हाउस, मुझे फंड दे, मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ, ये तो खा गए सारा, इनको दे दे। ये उससे बड़ा डाकू है। समझ आ रही है? चेक करके देखिए, जो अपोजिशन कर रहा है ऑफरिंग की, वो खुद बड़ा डाकू होगा।
खुद बड़ा डाकू होगा, सबसे बड़ा चोर वो खुद होगा जो अपोजिशन कर रहा है। उससे पूछे तूने चंदे में आज तक कितने दिए, तूने डायरेक्टली में आज तक कितने दिए, कितनी बिल्डिंगें तूने बनवाई हैं, कितने चर्च तूने बनवाए हैं, कितनी तूने लोगों को ब्लेस किया, तूने खुद क्या किया। हालेलुया। तो ये कॉमन सेंस है। अपनी अकलों को खोले कि यहूदा की स्पिरिट जो है पैसे के पीछे है, यहूदा की स्पिरिट गप्पों के पीछे है, यहूदा की स्पिरिट खाने के पीछे है, यहूदा की स्पिरिट आपकी डेस्टिनी खत्म करती है। हालेलुया। तो यहूदा की स्पिरिट से बचे। यहूदा की स्पिरिट जो है वो बड़ी डेंजरस है। इसने इवन यीशु की असाइनमेंट को एक्सपायर कर दिया है 3.5 साल। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और मैं पॉइंट बताऊंगा और क्लोज करूंगा। एक और आई बस और क्लोज। यूहन्ना 17:12 है, यूहन्ना 17:12 है। देखो तो समझ आ गया यहूदा वेरी डेंजरस है। आज जो आपको के चर्च के अंदर बैठ के डायरेक्टली रहने दो, हम कर रहे हैं अपना राशन बांटने का, उसमें शेयर कर दो। उसे मुझे सॉरी मैंने अभी डायरेक्टली देनी, उसके बाद बचेंगे मुझे वरना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप खिदमत के लिए नहीं देते आपका देना बेकार है। मैं अक्सर अपने सन डॉटर को एक्सप्लेन करता हूँ, अहद के संदूक पर खुदा की हजूरी की जब तक हवाला नहीं करना आपको बताता हूँ। मिस्ट्री कैन आई गो हायर। अहद के संदूक को 4 लोग कंधों पर उठाते थे, आदमी, और उस बॉक्स के ऊपर जो कीकर की लकड़ी का बना हुआ था, सोने से मड़ा हुआ था, उसके ऊपर 2 क्रोपी थे, उसके अंदर मूसा का आसा था, हारून और मूसा का आसा था, उसके अंदर मन था, तख्तियां थी 10 हुक्मों की, उसको 4 आदमी उठाते थे और उसके ऊपर खुदा की हजूरी आती और वो मूव करता था। इवन उस टाइम में खुदा की हजूरी को मूव करने के लिए 4 आदमियों की जरूरत थी। समझ आ रही है आपको? अगर उनके पैरों में चप्पल ना होती और कलीसिया से लोग उनको जूती खरीद के न देते, कैसे वो पत्थरों में 40 साल बियाबान में चलते। और कहते हैं चर्च को पैसे की जरूरत है, खुदा की मिनिस्ट्री को मूव करने के लिए सोचे जिसने कंधे पर उठाया हुआ है उसको जूतों की जरूरत है। वो खुदा के अहद के संदूक को 40 साल पत्थरों में, पानियों में, कंकरों में, रेत में, बियाबान में उठाकर चल रहे, कैसे कैसी जगहों पर। तो जस्ट सिंपल सी मैंने एक बात बताई है, उन लोगों को जूते कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? समझ आ गया? आज न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं वो कलाम यीशु के अंदर है, क्योंकि खुदा का कलमा है, उसके अंदर इख्तियार है और वो इख्तियार उसने हमें दिया है, चर्च को, पास्टर्स को। तो आज वो तख्तियां मेरे अंदर है, आज वो आसा मेरे अंदर, खुदा के खादमों के अंदर है वो चीज़। तो जब आप खुदा के खादमों को कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, पेट्रोल के पैसे, टिकट के पैसे देते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप भी उन काहिनों में शामिल हैं, क्योंकि बाइबल लिखा है हम शाही काहिनों का फिरका है, पाक उम्मत, चुनी हुई कौम, वो नस्ल है, खास लोग हैं। तो आप वो खास काहिन 4 तब बनते हैं जब आप ट्रांसपोर्टेशन में मदद देते हैं। हालेलुया। आज जब आप फ्यूलिंग में, खिदमत में आप पैसे देते हैं और मिनिस्ट्री मूव करती है, तो इमेजिन करें ओल्ड टाइम में जिन्होंने अहद का संदूक उठाया हुआ था वो काहिन थे जो आपके संदूक को, ग्लोरी को लेकर जा रहे थे, जो चर्च को स्पॉन्सर करते हैं। इसीलिए यीशु जब फिजिकल हालत में आया वो भी पैदल चलता था, गधे पर सवारी करता था, ऊंट पर सवारी करता था, कश्ती में सवारी करता था, जहाज नहीं था, मोटरसाइकिल कार नहीं थी। तो वो औरत सारा दिन पैदल चल के उसके पैरों में छाले हो, चप्पल पहनकर गर्मी रेत के अंदर, हाँ, तो वो औरत उसके पैरों की मसाज कर, जिसको आज एडवांस लैंग्वेज में मेडिकेयर पेडिकेयर कहते हैं। हाँ, यीशु के अगर मेडिकेयर पेडिकेयर कर लिया वो बेटी और वो अपना अतर इस्तेमाल कर लिया, वो क्या करा, ये बेच कर गरीबों को दे दो। यीशु ने क्या कहा, गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे दरमियान रहेंगे, क्योंकि यीशु को पता है गरीबी ये जेब में नहीं है, गरीबी दिमाग में। आप गरीब को अगर उसकी सोच चेंज नहीं करते, उसको 1 करोड़ भी दे दें, 10 साल के बाद वो फिर गरीब होगा। क्यों? क्योंकि गरीबी सोच में है। उसको ग्रेजुएट करें, निचोड़ करें। गरीबी जेब में नहीं है, गरीबी माइंड में है, सोच में। इसलिए यीशु क्या कह रहा है, गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे दरमियान आएंगे। इस अतर को मेरे पैरों में आने दो। इस व्यक्ति ने मुझे मेरे